جنوبی پنجاب میں تعلیمی بورڈز نے 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ بہاولپور بورڈ میں طلباء کی کامیابی کا تناسب 52.84% رہا، جبکہ سرگودا بورڈ میں 54.39% رہا۔ بہاولپور بورڈ نے 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کنٹرولر امتحانات اسما قاسم نے نتائج کا اعلان کیا۔ امتحان میں ٹوٹل 53,448 طلباء نے حصہ لی، جن میں سے 27,400 طلباء نے کامیابی حاصل کی۔ امتحان میں طلباء کی کامیابی کا تناسب 52.84% رہا۔ تعلیمی بورڈ سرگودا کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا بھی اعلان۔ امتحان میں 49,516 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 26,934 طلباء کامیاب قرار پائے۔ بورڈ کا مجموعی نتیجہ 54.39% رہا۔ 11ویں کے امتحان میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں۔ طالبات کی کامیابی کا تناسب 62.25%، جبکہ طلباء کی کامیابی کا تناسب 44.16% رہا۔ ملتان تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ چیئرپرسن ملتان بورڈ کمشنر مریم خان نے بٹن دبا کر رزلٹ ویب سائٹ پر جاری کیا۔ امتحان میں 68,674 طلباء نے شرکت کی۔ طلباء کی کامیابی کا تناسب 55% رہا۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے تحت 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان۔ چیئرپرسن ملتان بورڈ کمشنر مریم خان نے کنٹرولر امتحانات حامد سعید بھٹی کے ہمراہ صبح 10 بجے بٹن پر کلک کر کے رزلٹ ویب سائٹ پر جاری کیا۔ سالانہ امتحان 2024 میں 70,577 طلباء کا داخلہ موصول ہوا۔ امتحانات میں 68,674 طلباء نے شرکت کی، جن میں سے 37,814 طلباء کامیاب ہو سکے۔ اس طرح کامیابی کا تناسب 55% رہا۔ چیئرپرسن ملتان بورڈ کمشنر مریم خان کا کہنا تھا کہ طلباء محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل ایڈمیشنز ریسیو ہوئے تھے وہ 70,577 ہوئے تھے۔ جو پیئر ہوئے ہیں وہ 68,764 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پیئر ہوئے ہیں، اور پاس پرسنٹیج اس دفعہ ہمارے پاس 37,814 ہے، وچ از اراؤنڈ 55.06، اور اس میں ہمارے پاس جو پریویس ایئر کی پاس پرسنٹیج تھا اس سے تقریباً 3%، انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس دفعہ کم ہے۔ کمشنر مریم خان کا مزید کہنا تھا کہ بورڈ کا 11ویں جماعت کا رزلٹ گزشتہ سال کی نسبت 3% کم رہا۔ پری میڈیکل میں 68%، پری انجینئرنگ میں 72%، جنرل سائنس 53%، کامرس 43%، ہوم اکنامکس 73% اور ہیومینٹیز میں 41% پاسنگ شرح رہی۔ پری میڈیکل میں اس دفعہ 68% ہے اور پری انجینئرنگ میں 72% ہے، جبکہ آپ ہمارے جنرل سائنس دیکھیں اس میں 53% ہے، کامرس میں 43% ہے، ہوم اکنامکس 73 اور ہیومینٹیز 41۔ تو میرا اسٹوڈنٹس کو یہی میسج ہے کہ محنت کریں، کیونکہ اب ورلڈ پوری دنیا بہت کمپیٹیٹو ہو چکی ہوئی ہے، آپ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں، گلوبلائز ورلڈ ہے۔ ملتان بورڈ میں ضلع لودھرا 59% شرح کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ خانیواز ضلع پاسنگ شرح 57%، جبکہ ملتان اور بہاڑی کے اضلاع کی کامیابی کا تناسب 53% رہا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان کے تعلیمی بورڈ نے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ایڈیشنل کمشنر طاہر امین نے نتائج کا اعلان کیا۔ 50,374 طلباء نے امتحان میں حصہ لیا۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 64.21% رہا۔ ڈیرہ غازی خان کے تعلیمی بورڈ نے بھی 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ایڈیشنل کمشنر طاہر امین نے کمشنر آفس میں نتائج کا اعلان کیا۔ 50,374 طلباء نے امتحان میں حصہ لیا۔ 32,344 طلباء نے کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 64.21% رہا۔ فرسٹ اینول پارٹ 1 کا رزلٹ ہے 2024 کا، اور اس میں ٹوٹل جو تھے وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ 51,657۔ جو کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے ان کی تعداد 50,374 ہے، اور جن کینڈیڈیٹس نے یہ ایگزام پاس کیا ان کی تعداد 32,344 ہے۔ 11ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں مظفر گڑھ 69.69% کے ساتھ پہلے، کوٹ ادو 67.96% کے ساتھ دوسرے، اور لیا 66.47% کے ساتھ تیسرے نمبر پر، ڈی جے خان 57.44% کے ساتھ چوتھے، اور راجن پور 56.24% کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔ ڈسٹرکٹ وائز پرسنٹیج کچھ اس طرح رہی ہے۔ مظفر گڑھ ٹاپ پہ تھا، اس نے 69.59% لوگوں نے بچوں نے پاس کیا ایگزام۔ کوٹ ادو 67.96%، لیا کا رزلٹ پاس پرسنٹیج 66.47%، ڈی جی خان کی 57.44% اور راجن پور کی 56.24% رہی ہے۔
इस मौका पर सेक्रेटरी बोर्ड अब्दुर्रहमान, कंट्रोलर मुजफ्फर हुसैन, एसीजे फाहद नूर और IT टेक्नीशियन समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। हुकूमत पंजाब और महकमा स्कूल एजुकेशन का असातिज़ा की तकर्री का फैसला, सूबे के तमाम स्कूलों में असातिज़ा की तकर्री ज़रूरत के मुताबिक होगी। पहले मरहले में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रैशनलाइजेशन की जाएगी। इसमें मज़ीद तफसीला जानने के अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा, बताइएगा कि असातिज़ा की तकर्री का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा की प्रमोशन का फैसला जो है असातिज़ा के लिए ये खुश आइन है, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो ग्रेड 13 और 14 के असातिज़ा हैं वो अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे। इसी हवाले से जो है पहले मरहले में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रैशनलाइजेशन की जाएगी। उसके बाद जो है प्रमोशन का अमल किया जाएगा। असातिज़ा की रैशनलाइजेशन की अगर बात की जाए तो वो 14 अक्टूबर से शुरू होगी और इसका जो अमल है 10 नवंबर तक जारी रहेगा। प्राइमरी सेक्टर में कम से कम पंजाब भर में 103 असातिज़ा जो है वो प्रमोट होंगे। इसी तरह अगर एलिमेंट्री सेक्शन की बात की जाए तो उसमें जो है 86 असातिज़ा की जो है प्रमोशन होगी और ये जो अमल है 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। असातिज़ा जो है पिछले 3 साल से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे और ये खबर उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जी, असातिज़ा 3 साल से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अलिशबा आसिफ हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। डेरा गादी खान में विमेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। नौमुंतखब ख़वातीन ओहदेदारान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन का आगाज कर दिया। डेरा गादी खान विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओहदेदारान खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने जिमखाना में तकरीब सजाई, जिसमें ओहदेदारान और एग्जेक्टिव मेंबर्स समेत तालिबात ने भी शिरकत की। सदर नूरुल सबा का इस मौका पर रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डेरा गादी खान की खवातीन को सनत व तिजारत में खुद मुख्तार बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। ये तो अभी हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। वुमेन जो है एक वाइटल रोल प्ले कर रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्ले करेगी इंशाल्लाह और हम डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत आगे लेके चलेंगे। सीनियर नायब सदर शाहीन सुल्तान ने कहा कि वो डेरा गादी खान में महसूर इन खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए काम शुरू कर रही हैं, जो बहुत कुछ कर सकती हैं मगर माहौल साजगार न होने की वजह से कर नहीं पा रही। हम तमाम लेडीज़ मिलकर एक टीम तैयार करेंगे, टीम वर्क करेंगे अपनी DG खान की खवातीन के लिए, स्पेशली वो खवातीन जो घर में बैठी हैं जिनको कोई प्रोवाइड नहीं है, कोई सहूलतें नहीं है, तो इंशाल्लाह हम घर घर जाकर उनका साथ देंगी, उनसे इंशाल्लाह हम टीम वर्क करेंगे। बनी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नायब सदर आयशा फातिमा भी इस मौका पर मौजूद थीं। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान भट्टा कॉलोनी की गलियां नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। 2 साल से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। सीवरेज के नाकिस निज़ाम से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान से जहां भट्टा कॉलोनी की गलियां नदी नाले का मंजर पेश करने लगी हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानने के वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम शहजाद, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भुट्टा कॉलोनी में मौजूद हूँ और बात करते चलें तो यहाँ पर 2 साल से शहरी जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। बच्चे बीमार हो चुके हैं और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि मलेरिया डेंगू जो है वो सीवरेज के बहुत सीधा निज़ाम की वजह से फैल रहा है। कुछ शहरी मौजूद हैं। कितने अरसे से ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे? इसको तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं और वासा की इतनी नाली है कि लोगों ने कई बार एहतजाज किया, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है और इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो गंदा पानी इतने अरसे से खड़ा है, तो जब गंदा पानी इतने अरसे से खड़ा हो तो सबको पता है कि बीमारियां भी फैलते हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खस्ता हो रही हैं। तो इनको कोई जो है ना कमिश्नर साहब तक गए हैं, लेकिन NOC एक चाहिए था, इसको पाइप भी मौजूद पड़े हैं तो उसका काम करने वर्किंग के लिए NOC चाहिए था। कमिश्नर साहबा नहीं दे रही, उनको इलाके के साथ कोई गर्ज नहीं। यहाँ बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो परेशान है, औरतें गुजरती हैं वो परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। नमाज के लिए वुजू जो करके निकलता है तो उसका वुजू पूरा नहीं रहता, इतना पानी यहाँ खड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमिश्नर साहबा से कि हमारे इस इलाके पे रहम करें और जो है ना एक कानूनी और आईनी हमारा हक है कि NOC दे के और हमारा काम फौरी तौर पे जारी करवाएं। आम फौरी तौर पर किया जा सके। बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, स्कूल्स भी हैं, साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कितनी मुश्किलात देख रहे हैं, क्या करें?
भाई ये 2-2.5 साल से जो है ना ये मामला चल रहा है, घरों में भी पानी खड़ा हुआ है, घरों में भी पानी खड़ा हुआ है, और बच्चे जो गुजरते हैं वो परेशान होते हैं, नमाजी परेशान हो रहे हैं, पूरे यहाँ के गुजरने वाले जो है लोग वो भी परेशान है। बहरहाल में हमारा मसला ये हल किया जाए, ये देरीना मसला है, बहुत अरसे से चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है, देरीना मसला है, क्यों हल नहीं किया जा रहा? इंतजामिया इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है? आपकी जानिब से दरखास्तें दी गई हैं? क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा ना शिकायत करी है लोगों से, कोई भी नहीं आता है यहाँ। तकरीबन 2-2.5 साल से यही हाल है यहाँ। जितने भी यहाँ बच्चे गुजरते हैं, यहाँ स्कूल में आते हैं बच्चे गिर जाते हैं, औरतें यहाँ गिर जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस इलाके में कोई भी नहीं आता है, इंतजामिया यहाँ पूछती कोई नहीं है। ये जितना काम भी करवाते हैं हम खुद करवाते हैं। जो भी वादसा का गाड़ी तकरीबन 15 दिन बाद या महीने बाद आती है, उसके अलावा जितना काम करवाते हैं हम खुद लोग करवाते हैं, सारे मोहल्लेदार। इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त यहाँ पर बीमारियों की क्या सूरत हाल है? बीमारियां यहाँ डेंगू यहाँ फैला हुआ है, और मसला इंतजामिया से हम यही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कमिश्नर साहिबा से गुजारिश है कि सिर्फ एक एनओसी दे दें, एनओसी दे दें। महकमा हाईवे वालों ने भी एस्टीमेट बना के दिया हुआ है, कारपोरेशन वालों ने भी एस्टीमेट बना के दिया हुआ है। इसमें जो है ना वो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, ठीक है। अब फाइल इस वक्त हम सारे अहले इलाका ने सारी इकट्ठी करके एस्टीमेट बना के वासा के जरिए भिजवाए हैं। अब कमिश्नर साहिबा सिर्फ कमिश्नर साहिबा की वजह से जो है ना एनओसी नहीं मिल रही। जिस दिन एनओसी मिल गई उसी दिन महकमे में काम शुरू हो जाएगा, महकमे का बहाना खत्म हो जाएगा, बहाने जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। कितनी मुश्किलात है हजरत, क्या कहेंगे यहाँ? बहुत मुश्किलात, इतनी मुश्किलात हैं कि कल मैं पानी में गिर गया और मुझे इतनी चोटें लगी हैं ना कि हद से ज़्यादा। अगर मैं आपको चोटें दिखाऊं ना तो आप तौबा करेंगे भी वाकई बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं मुझे। मैं चल भी नहीं सकता, इतनी चोटें लगी हैं। पंप चलाने वाला भी कोई नहीं आता, जो शिकायत करते हैं तो वो सुनता ही कोई नहीं है। सलमान नईम के पास गए वो भी नहीं सुनता। लिहाजा कमिश्नर साहब से गुजारिश है ताकि ये काम हो सके। इतनी बीमारियां, गंद उठाने वाला कोई नहीं आता, पानी तो पानी, गंद उठाने वाला कोई नहीं आता। खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है, जो इंतजामिया के खिलाफ जो है वो हाथ भी उठाए हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो एहतजाज है उसका भी दायरा कार जो है वो वसी किया हुआ है। और उनके इस हवाले से कहने कि इंतजामिया जो है वो हमें जो है वो फराहम करे वो नोटिस, जिसके बाद जो है वो ये काम किया जा सके। और भी शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे कितनी मुश्किलात सर ये 2-3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, गंदा पानी जमा हुआ है, यहाँ लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पंजाब हुकूमत की इतनी नाअहली है, वो इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे। कमिश्नर साहब के पास कई दफा गए, एमडी वासा के पास गए, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी तक ये सारी ट्रैफिक आमदोरफ्त चल रही है, लेकिन लोग इतने तंग हैं कि बेचारे जो है ना अपने शाम को जब जाते हैं कपड़े भीग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं। कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पे क्या मनाजिर जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं कि यहाँ पर ये गली है शहर की जो है वो भुट्टा कॉलोनी की मेन जो है वो शाहराह है, और इस गली में सूरत हाल जो है वो इस तरह से है कि गाड़ियों को गुजरते हुए भी खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो खासा मुश्किलात से दो चार है। और उनका यही कहना है कि इंतजामिया इस हवाले से एक्शन जो है वो लेती नजर आए, और यहाँ पर जो एहतजाज का जो दायरा कार है वो भी वसी कर दिया गया है। और भी हमारे साथ यहाँ पर शहरी जो है वो मौजूद हैं, आपसे भी जानेंगे। सर ये बताइए कितनी मुश्किलात का सामना है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं 2 साल से, क्या सूरत है? भाई मुश्किलात ये है, एक तो ये हमारे पास वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम कहीं और से चल जाएं, लंबा चक्कर काट लें। बच्चों को सुबह लेके जाते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, जब स्कूल का रश पड़ता है हर कोई स्पीड मारता है, अक्सर बच्चों के यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं और बच्चों की छुट्टी करानी पड़ जाती है। और घरों में हमारे आके चेक करते हैं डेंगू मच्छर के लिए, और यहाँ पे देखें ना अब कितना मच्छर लावा पैदा हो रहा है, बीमारी आएंगी। हम अस्पतालों में चक्कर खाएंगे, धक्के खाएंगे फिर, और क्या करेंगे? या रोजी कमाएंगे बच्चों के लिए हम वापिस मुड़ेंगे। सर क्या कहेंगे, इंतजामिया को गुजारिश करेंगे? इंतजामिया को गुजारिश तो यही है कि 3 साल से कोई नहीं पूछ रहा, 2.5-3 साल से बुरा हाल है। यहाँ लोग गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, पानी के अंदर बुरा हाल है, कोई बंदा गुजर नहीं सकता है। नमाजियों के लिए परेशान है सब, और शहरी जो है वो खासा मुश्किलात का दो चार हैं, बच्चे भी दो चार हैं। इनका कहना है कि इंतजामिया फिलफोर एक्शन ले और इस मसले को हल करे, वगरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। जी
شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ وسیم شہزاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلیو پوٹری کے برتن ملتان کی ثقافت کے اہم رنگ۔ بلیو پوٹری کے برتن اب مختلف رنگوں میں بھی بنائے جانے لگے ہیں۔ مختلف رنگوں میں تیار ہونے والے بلیو پوٹری کے برتن قدردانوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ مختلف رنگوں میں ڈھلے یہ برتن ہیں ملتان کی خصوصی آرٹ بلیو پوٹری کے، جو پہلے صرف نیلے، فیروزی اور سفید رنگ میں تیار کیے جاتے تھے، مگر زمانہ بدلنے کے ساتھ ان برتنوں میں بھی جدت آ گئی ہے۔ مختلف رنگوں میں ڈھلے یہ خوبصورت برتن قدردانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سے ملتان آئے ہیں ادھر شاپنگ کے لیے، تو ادھر یہ برتنوں کی دکان ہمیں اچھی لگی، اس میں ہم داخل ہوئے ہیں اور ایک دو برتن ہم نے خریدے ہیں، اور بڑا ان کی وہ کلر وغیرہ بھی اچھے ہیں۔ بلیو پوٹری شو روم کے مالک منظور حسین کا کہنا تھا کہ بلیو پوٹری میں مختلف رنگ استعمال کرنا ایک مشکل آرٹ ہے، مگر آج کل مختلف رنگوں سے بنے برتنوں اور ڈیکوریشن پیس کے آرڈر زیادہ آتے ہیں۔ میں ریڈ، گرین اور اورنج کلر استعمال ہو رہا ہے اور یلو۔ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ملٹی شیڈز آ گئے ہیں۔ ملٹی شیڈز کی وجہ سے اس کے بلیو پوٹری میں جو ہم شو بناتے ہیں، ڈنر سیٹس، ٹی سیٹس، اس کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ہم بھیجتے ہیں، یہاں سے لوگ خوشی سے آتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، اور ابراڈ بھی جو ہے نا یہ بہت پسند کیے جاتے ہیں، تو اکثر ابراڈ سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں گفٹ دینے کے لیے۔ بلیو پوٹری کے برتن نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی بھیجے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ملتان صرف اپنے پسندیدہ لیمپ اور برتن خریدنے آتے ہیں۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔